Assalamu alaikum for class. Hope you all will be fine. I'm your teacher Ikra Rahman, and from today we are going to start New Oxford Modern English. So students, open your books. Unit number 1, Pippi Longstocking. Students, Pippi is the main character of this unit, but first of all we will learn about the author of the story. Yes, our author means writer who wrote this story. Here, come on page number 4. Here is the blog about the author. Astrid Lindgren. Astrid Lindgren is the author of this story. Was a Swedish writer. She is best known for her children's book series. The Pippi Longstocking stories are about an unusual girl. Pippi is brave, funny, and so incredibly strong that she can lift a horse up with one hand. Yes, students, here is a word Swedish. Swedish means a person who lives in Sweden. Okay, like you are living in Pakistan, so you will called as Pakistani, and Swedish means person who lives in Sweden. Okay, students, Astrid Lindgren wrote many books, but Pippi Longstocking series is very famous. एस्ट्रिड लॉन्गस्टॉकिंग ने एस्ट्रिड लिंगरेन ने बहुत सारी बुक्स जो हैं वो लिखी थी, ठीक है, लेकिन उनमें से जो पिपी लॉन्गस्टॉकिंग जो स्टोरीज है सीरीज़ है वो उसकी ज़्यादा फेमस है, ठीक है. इट्स अ वेरी फेमस. वाई इज़ अ फेमस? बिकॉज इट इज़ अबाउट एन अनयूजुअल एंड फनी गर्ल. क्योंकि ये जो पिपी लॉन्गस्टॉकिंग सीरीज़ है ये एक अनयूजुअल यानी एक यूनिक गर्ल के रिलेटेड जो है ये स्टोरी, और वो गर्ल जो है वो यूनिक भी है और फ़नी भी है, ठीक है. अब आप लोग जब कोई चीज़ यूनिक सी देखते हैं तो आपको जो है वो आपका दिल करता है कि हम उसके रिलेटेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें. सो दैट्स वाई जो एस्ट्रिड लिंगरेन की जो पिपी लॉन्गस्टॉकिंग सीरीज़ थी इस वजह से ये फेमस थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 2. So students, here is the Pippi. This is the picture of Pippi. So students, Pippi wore very large socks. That's why the title of this unit is Pippi Longstocking. Okay, Pippi is a very unique girl having unique lifestyle. जी, स्टॉकिंग्स कहते हैं जी सॉक्स को, ठीक है. स्टॉकिंग्स किसको कहते हैं? सॉक्स को. लंबी लंबी जो सॉक्स होती हैं लॉन्ग स्टॉकिंग्स. सो इन सॉक्स की वजह से इस यूनिट का नेम है पिपी लॉन्गस्टॉकिंग. और पिपी क्या है? यूनिक गर्ल है और हैविंग यूनिक लाइफस्टाइल, और उसके जो रहने सहने के जो तौर तरीके हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल है वो भी यूनिक है. ओके, नाउ here are some sight words. Here, first one is braided. Its meaning is plaited. उर्दू में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है गुंदा हुआ, यानी इसकी जो ये 2 चुटियाँ हैं, ठीक है, ब्रेड्स हैं, ये जिस तरीके से बंदी हुई हैं उनको हम कहते हैं ब्रेडेड. सेकेंड वन इज कैनिबल. समवन हु ईट्स अदर पीपल. जी, समवन हु ईट्स अदर पीपल, जो दूसरे लोगों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? कैनिबल. थर्ड, करेज, ब्रेवरी, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट frightens you. Yes, courage mean बहादुरी, हौसला, ठीक है. freckles, small patches of darker color on skin often made darker by the sun. जी, freckles स्टूडेंट्स कहते हैं डॉटेड स्किन को, स्किन पर जो छाइयाँ बन जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? freckles कहते हैं. remarkable, someone or something worth noticing. जी, रिमार्केबल मीन्स नोटिसेबल, यानी जिस चीज़ को आप नोटिस, ऑब्जर्वेबल जो चीज़ होती है, जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनको रिमार्केबल बोलेंगे, ठीक है, यूनिक. sidewalk, a paved pathway at the side of a road. जी, रोड पे जो फुटपाथ होता है उसको आप साइड वॉक कहते हैं.
स्टॉकिंग्स, वेरी लॉन्ग सॉक्स। अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉकिंग्स किसको कहते हैं, सॉक्स को कहते हैं। ओके, डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रीडिंग। When Pippi entered Villa Valicula for the first time, it was a lovely summer evening. Here, villa students means farmhouse. ठीक है, farmhouse. Valicula is the name of Pippi's house. The children next door, Tommy and Annika. Yes, Pippi is. Already told you that Pippi is the main character of this unit, and other two characters are Tommy and Annika. Okay, Tommy and Annika were not at home. They had gone to visit their grandmother for a week, and so they had no idea that anybody had moved into the house next door. जी, पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग, मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स, पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग के जो घर का नाम था वो क्या था, विला वेलिक्यूला। ओके, विला वेलिक्यूला में जब पिपी दाखिल होती है, एंटर होती है, तो वो क्या है, इट वॉज अ लवली समर इवनिंग, गर्मियों की, मौसम गर्मा की शाम, यानी मौसम गर्मा की शाम थी जब पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग जो है, पिपी अपने फार्म हाउस में दाखिल हुई थी। ठीक है, वहाँ पर शिफ्ट हुई थी। नेक्स्ट डोर, यानी जो उसके नेबर्स थे, कौन थे, टॉमी एंड एनिका। नेबर्स जो थे उसके, टॉमी एंड एनिका, वो तब अपने घर पर नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उनके पड़ोस में कोई नया बंदा आया है। कहाँ गए थे टॉमी एंड एनिका, टू विजिट देयर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादों को मिलने गए हुए थे। On the first day after they came home again, they stood by the gate, looking out onto the street. जी, जब एनिका एंड टॉमी, ठीक है, एनिका और टॉमी जो है घर वापस आ गए, वापस आने के बाद वो अपने गेट पर खड़े, गली, स्ट्रीट कहते हैं जी गली को, ठीक है, गली में देख रहे थे। दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर। यस, अब उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर के पास कोई उनके साथ खेलने वाला, उनका प्लेमेट, खेल का साथी मौजूद है। They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days when they couldn't think of anything to play. Yes, considering का मीनिंग है सोचना। जी, अब वो टॉमी एंड एनिका जो हैं वो अपने घर के दरवाजे के पास खड़े थे, सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि वो सोच रहे हैं कि हमारा जो आज का दिन है वो भी हमारे पुराने दिनों की तरह बोरिंग यानी बेजार होगा, या हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम खुश हो सकें। And just then the gate of Villa Valicula opened and a little girl stepped out. Stepped out means to come out from the room or from the door. Okay, and stepped out का क्या मतलब होता है, डोर से या रूम से बाहर आना। stepped out, बाहर आना, to come out. She was the most remarkable girl Tommy and Annika had ever seen. Yes, अब जो उन्होंने वो लड़की देखी, रिमार्केबल यानी वो काबिल गौर, यानी वो ऐसी लड़की थी जिसको देखा जाए, ठीक है, तवज्जो के काबिल थी वो लड़की, और इस तरह की लड़की टॉमी एंड एनिका ने पहले कभी नहीं देखी थी। शी वॉज मिस पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, दिस इज़ द वे शी लुक्ड। जी, वो कौन थी, वो थी मिस पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग। वो पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग थे जो उस वक्त अपनी सुबह की सैर के लिए निकली थी। दिस इज़ द वे शी लुक्ड, ये वो इस तरह, कुछ इस तरह दिखती थी। जी, अब हम स्टूडेंट्स जो पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे उसमें हम पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग की अपीयरेंस को स्टडी करेंगे, दैट हाउ शी लुक्ड।
Her hair, the color of a carrot, was braided in two tight braids that stuck straight out. जी, उसके बाल कलर ऑफ कैरेट गाजर के रंग के थे. Here is her hair. ओके, गाजर के रंग थे. वॉज ब्रेडेड, और वो दो चोटियों में गुंदे हुए थे, और वो जो दो चोटियाँ थी वो बिल्कुल सीधी बाहर की तरफ निकली हुई थी. हर नोज वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विद फ्रेकल्स. जी, उसकी नाक जो है, नाक क्या थी? हेयर. नोज़ को उन्होंने किससे कंपेयर किया है? स्मॉल पोटैटो, यानी एक छोटे से आलू की जैसी उसकी नाक थी, और उसकी बाकी जो स्किन थी वो फ्रैकल्स मैंने आपको बताया छाइयाँ, ठीक है, छाइयों से भरी हुई थी. हेयर, अभी तक हमने किस चीज़ को स्टडी किया? हेयर्स को देखा और नोज़ को. नाउ it must be admitted that the mouth under this nose was a very wide. जी, अब वो कह रहे हैं कि ये जो इसकी नोज़ है और माउथ है, नोज़ छोटी सी और माउथ जो है वो बहुत चौड़ा है, वाइड है. शी हैज़ अ वाइड माउथ अंडर हिज स्मॉल नोज. एडमिट का मतलब होता है जी एडमिटेड, मानना. Yes, next is with strong white teeth. जी, जो माउथ था वो नोज से बड़ा था, विद स्ट्रॉन्ग टीथ, और उसमें क्या थे? सफ़ेद दांत चमक रहे थे. हर ड्रेस वॉज रादर अनयूजुअल, और उसका ड्रेस भी जो है वो भी पिपी की तरह, जस्ट लाइक पिपी, वॉज अनयूजुअल. अनयूजुअल मीन वेरी यूनिक. पिपी हैड मेड इट हरसेल्फ मेड, बनाना, हरसेल्फ खुद, यानी पिपी ने वो ड्रेस जो है वो खुद तैयार किया था, खुद बनाया था. शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू बट देयर वाजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, सो पिपी हैड sewed little red pieces on it here and there. जी, पिपी ने ये खुद तैयार किया था. अब पिपी इसको ड्रेस जो उसका था उसको ब्लू कलर में बनाना चाहती थी, बट देयर वाजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, यानी उसके पास जो नीला कपड़ा था वो कम था. सो पिपी हैड सूड लिटिल रेड पीसेज ऑन इट हेयर एंड देयर. सो पिपी ने क्या किया कि उसमें रेड पीसेस जो हैं वो आगे पीछे पैचेस के तौर पर लगा लिए. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी, ब्लू ड्रेस है, उसमें ये रेड कलर के पीसेस जो हैं लगे हुए हैं. ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स शी वोर अ पेयर of long stockings, one brown and the other black. जी, long thin legs, यानी उसकी जो दुबली टांगें थी उसमें उसने क्या पहना हुआ था? एक जोड़ा लंबी जराबों का सॉक्स, लॉन्ग सॉक्स जो है वो पहनी हुई थी, जिसमें से एक का रंग भूरा था, ब्राउन, और दूसरी का रंग स्याह था, काला. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. वन इज़ ऑफ ब्राउन कलर एंड अदर वन इज़ ऑफ ब्लैक कलर. ओके, शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट. जी, और उसने क्या पहने हुए थे? स्याह रंग के जूते, शूज़, ब्लैक शूज़ पहने हुए थे, और वो जो शूज़ थे वो उसके साइज से बड़े थे. ठीक है. हर फादर हैड बॉट दीज शूज़ फॉर हर इन साउथ अमेरिका सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू. जी, वो शूज़ जो हैं वो उसके पिपी के जो फादर हैं वो कहाँ से लेकर आए? अमेरिका से लेकर आए, ये सोच कर के शूज़ पहनेंगे, बड़े शूज़ होंगे, उसमें जैसे जैसे पिपी बड़ी होगी तो उसको फील होगा कि दैट शी इज़ ग्रोइंग अप. शी लव्ड them and she never wanted to wear any others. जी, और उस पिपी को वो शूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनके अलावा वो कोई दूसरा जूता पहनना पसंद नहीं करती थी.
But the thing that made Tommy and Annika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. जी, सबसे अजीब बात जिसने टॉमी और एनिका को हैरान कर दिया. नाउ हियर इज ओपन देयर आइज वाइडस. ओपन देयर आइज वाइडस यानी इसको हम ये नहीं कहें उसकी उनकी आंखें और ज़्यादा खुली की, यानी इसका मतलब जो है वो है चला जाता है कि दे वर अस्टोनिश्ड. ओके, वो हैरान हो गए किस चीज़ को देखकर, उस अजीब, स्ट्रेंज कहते हैं जी अजीब को, ठीक है, उस अजीब लड़की के शोल्डर पर एक, जब उन्होंने बंदर को बैठे हुए देखा तो टॉमी एंड एनिका बिकम वेरी astonished. It was a little monkey dressed in blue pants, a yellow jacket and a white straw hat. जी, वो क्या था, मंकी बंदर था जिसने ब्लू नीली पतलून पहनी हुई थी, पीला जैकेट पहना हुआ था और सफ़ेद तिनकों वाली हैट सर पर पहनी हुई थी. हेयर इज़ द मंकी. ओके, he is wearing blue pant, yellow jacket and a hat. Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. जी, पिपी के अब वॉकिंग स्टाइल पर आ जाते हैं. हमने उसकी अपीयरेंस देख ली. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हर वॉकिंग स्टाइल. यस, पिपी जब चल रही है, वॉक कर रही है, तो किस तरीके से चल रही है, जिसमें उसका एक पाँव जो है वो रोड यानी जो है फुटपाथ है वहाँ पर है, साइड वॉक जिसे हम फुटपाथ कहते हैं, और जो दूसरा पाँव है वो गटर. गटर मीन्स वाटर कैनाल जो है जिसको हम उर्दू में नाली कहते हैं, ठीक है, वाटर कैनाल है, एक पाँव उसमें है. इस तरीके दोनों पाँव जो है एक साइड वॉक पर है और एक गटर में है, ठीक है, और वो चल रही है. टॉमी एंड एनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर. टॉमी एंड एनिका ने उसको गौर से देखा जब जितनी देर वो उनको नज़र आती रही. इन अ लिटल वाइल शी केम बैक एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड. यानी थोड़ी देर बाद वो मॉर्निंग वॉक करके वापस आ गई. अब जब वो वापस आई है तो क्या हुआ है, नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड. अब वो पीछे की तरफ उल्टे कदम चल रही है, ठीक है, बैकवर्ड्स पीछे की तरफ. दैट वॉज बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम. जी, ये क्यों, वाई शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम. यानी वो अपने घर तक पहुंचने के लिए वापस टर्न यानी मुड़ना नहीं चाहती थी. दैट्स वाई शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड्स. When she reached Tommy's and Annika's gate, she stopped. जब वो टॉमी और एनिका के दरवाजे के पास पहुंची तो वहाँ जाकर वो रुक गई. ओके, वहाँ जाकर वो रुक गई. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है रीडिंग यहाँ तक आज हम करेंगे. इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम रिमेनिंग रीडिंग जो है वो कर लेंगे. आपने ये रीडिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से. इफ़ यू फील एनी ट्रबल, write in comment box. Okay students, take care and Allah Hafiz.